So today's topic is software evaluations, right? Okay. So in software evaluations, we covered first the different type of software challenges, right? After that, we covered importance of evaluations of softwares, then the different type of software development approach, right? Okay. So these are the main points which are covered in this topics, right? The first thing, uh, software changes, right? So software changes, what is the meaning of software changes? So new requirements emerge when the software is used. The business environment changes, errors must be right rapid. New computers and requirement is added to be system. The performance or reliability of the system may have to be improved. A key problem of all organization is implementing and managing changes to their existing software system. The major problem is that the running life is changes day by day, right? So the requirement are frequently changes, right? If the requirements are changing day by day, so how to incorporate in your computer systems or computer softwares, right? So that is a problem. So software changes day by day according to your requirement. For example, suppose in olden days, the taxation systems, right? At that time, there is no VAT systems, right? Simple, no GST system, simple taxation systems. Now the GST and some other taxation systems are involved. In previously systems, tax calculation is a different thing. Slabs are different thing. Now the tax slabs are different, right? Tax calculation schemes are different, rebates are different. So each and every times you want to change in your software. So when you develop the software, right, that is the one part. After developing the software, the change is the second part, right? So life, when we compare the real life and the software life, so both are the similar, right? The life is always change and the software life is always change, right? When the requirements, new requirements are coming, the software life is changed, right? So new requirement is coming, so you the primary concern is that you add on that requirement in your existing software without disturbing of your current requirements, right? Current running software. So that is a main goal of software changes, right? So the key problem of all organization is implementing and managing change to their existing software system. सो सिंपल सेंस है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रन करता रहे, राइट? एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, और जो आपकी न्यू रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें ऐड ऑन होती रहे, राइट? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। सो सिस्टम अपग्रेडेशन इज अ वन पार्ट। सपोज आपके पास में नए सिस्टम्स है, नए रिक्वायरमेंट्स है, आपको नई कोई चीज़ें ऐड ऑन करनी है। सो उन चीज़ों को हम कैसे कॉपरेट करें, राइट? पहले हम लोग सपोज आपके पास में कोई सिस्टम रन करते थे पुरानी टेक्नोलॉजी पे, फॉर एग्जांपल हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं, तो फॉक्स प्रो डेटाबेस पे रन करते थे। नाउ अब आपके पास में हम लोग ओरेकल रन करते हैं, ओरेकल में भी न्यूयर वर्जन रन करते हैं। तो हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से अपग्रेड करें, किस तरीके से आपके पास में एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को न्यूयर टेक्नोलॉजीज पे लेके आए, राइट? सो दीज आर द चैलेंजेस, राइट? तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर चेंजेस के पॉइंट में डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ the next part is importance of evaluations, right? What is the meaning of importance of evaluation? So organization have huge investment in their software system, they are critical business assets. Now agar hum aaj ke scenarios ki baat kare, so almost each and every business is dependent on the computerization parts, right? हर एक चीज आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली डिपेंडेंट है। अगर हम किसी भी सेक्टर्स की बात करें, तो सारी चीजें आपके पास में ऑटोमेटिक है इन टर्म ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, राइट? इवन अगर हम नॉर्मल एक छोटी सी किसी शॉप पे भी जाते हैं, तो जो आपके पास में बिल जनरेशन है, दे आर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट्स, राइट? सो सारी चीजें आपके पास में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास में स्लाइटली चेंजेस की वजह से फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास में क्या होगा, बेकार हो जाएगा। सपोज हमने एक बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन रन करी हुई है, उसमें हमने एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, राइट? जस्ट अ मिनट।
ओके, सो जब हम इवेल्युएशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में मेनली का क्या प्रोसेस होता है कि जब भी हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं सो हम उसको इजीली ऐड ऑन कर सकें अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम से, सो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास में वेस्ट नहीं हो, राइट, क्लियर। सेकेंड पार्ट है टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स टू द बिजनेस दे मस्ट बी चेंज एंड अपडेटेड। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में सिस्टम क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। आप में से मैक्सिमम लोग लैपटॉप यूज करते हो या मोबाइल यूज करते हो, सो जो पुराने आपके पास में मोबाइल्स होते हैं, राइट, और अगर आप गेम के शौकीन हो या आपके पास में एप्स जो आपके पास में लेटेस्ट ऐप हैं वो आपके पास में पुराने कॉन्फ़िगरेशन पे वर्क नहीं कर सकते, तो इट मीन्स आपको क्या करना है, अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो अगर आपको अप टू डेट रहना है तो इट मीन्स आपको अपने सिस्टम्स को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपने सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। सो इवैल्यूएशंस आपको हमेशा रिक्वायरमेंट है, यानी अपडेशंस आपकी नीड है, राइट, क्लियर। So the majority of the software budgeted in large companies is developed to changing and involving existing software rather than developing new software. So generally most of the जितने भी बड़े organizations हैं या जितने भी आपके पास में ह्यूज सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम दोबारा क्रैश से डेवलप नहीं करते हैं। इट मीन्स हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेजन प्लेटफॉर्म की बात करें, एसबीआई की बात करें, राइट, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो जो रियल वर्ड्स पे आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको सपोर्ट करती हैं, तो आप देखो जो उनके प्लेटफॉर्म्स थे वो आपके पास में रन कर रहे हैं, वो उसके अल्फा या बीटा वर्जन्स लॉन्च करते हैं, यानी वो नई फंक्शनलिटी एड ऑन करते जाते हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करते जाते हैं, राइट। इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करते जाते हैं। वो पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास में क्रैश से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके पास में जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको टाइम टू टाइम क्या करते जा रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं। क्यों, अगर हम टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करेंगे तो आफ्टर सर्टेन लॉन्ग पीरियड वाइड अगर हम चीज़ों को अपग्रेड करने की सोचेंगे तो टेक्नोलॉजी और आपके पास में हार्डवेयर क्या होंगे, ऑब्सलीट हो जाएंगे। तो जब ऑब्सलीट हो जाएंगे तो हम उन चीज़ों को डायरेक्टली अपग्रेड नहीं कर सकते। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। सो चेंज हमारे लाइफ का रिक्वायरमेंट है, राइट, नीड है, नेसेसिटी है। तो सेम है सॉफ्टवेयर भी आपके पास में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसमें भी आपके पास में ये सारी चीजें फुलफिल करती हैं। तो इसीलिए उसको भी बोला जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोथ आर द सिमिलर दिस, राइट। तो चेंजेस हमेशा आपके पास में एप्लीकेबल है, सो इवैल्यूएशंस आपके पास में रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। स्पाइरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट्स और इवैल्यूएशंस क्या है आपके पास में। सपोज अगर हम स्पाइरल की बात करें, हमने स्टार्ट किया, फिर राउंड्स हमारे पास में स्टार्ट है, और ये हमारे पास में क्या है, स्टार्ट से लेके हम कितने भी स्पाइरल एड ऑन करते जाएंगे, हम क्या करते जा रहे हैं, चीज़ों को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट्स करते जा रहे हैं, राइट। सो हमने स्टार्ट किया, पहला रिलीज दिया, राइट, फिर दूसरा रिलीज दिया, फिर तीसरा रिलीज दिया, फिर चौथा रिलीज दिया। तो ये आपके पास में बहुत सारे डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, राइट, जिसको आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, राइट। वहाँ पे आपके पास में वाटरफॉल मॉडल पढ़ाया जाएगा, प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ाया जाएगा, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल पढ़ाया जाएगा, स्पाइरल मॉडल पढ़ाया जाएगा। सो स्पाइरल मॉडल का बेसिकली काम क्या है, जैसे आपको समझ में आता है, स्पाइरल का मतलब क्या है, एक दूसरे की चीज में लिंक, चीजें कनेक्टेड हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया हुआ है, किसी भी चीज को स्टार्ट किया तो आपने फेज 1 में बोला हुआ है कि हम चीजों को स्पेसिफाई करेंगे। जब स्पेसिफाई कर लोगे, आप चीजों की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर लिया आपने, तो आपको ये मालूम हो गया ना कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज आपको चाहिए। जब आपने उस चीज को स्पेसिफाई कर लिया तभी तो आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, बनाओगे, डिजाइन करोगे। तो सेकंड पार्ट में जब आपने चीजों को स्पेसिफाई कर लिया तो सेकंड पार्ट में आपने क्या किया, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जब आपने उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर लिया, तो इम्प्लीमेंट स्टार्ट करने के बाद में आप उन चीजों को फिर चेक करोगे कि वो आपके अकॉर्डिंग टू नीड है या नहीं, राइट। सो जब आपके पास में वो चीजें आपकी अकॉर्डिंग टू नीड फुलफिल कर लेंगी तो आप उनको ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में रन करोगे, राइट। सो दीज आर द स्पेरिकल, यानी हर एक चीज एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, राइट। सो दैट इज अ सिंपल फिनोमेना ऑफ स्पेरिकल मॉडल, राइट, ओके। नाउ अब आते हैं सॉफ्टवेयर स्टेजेस, यानी इवैल्यूएशन और सर्विसेज आपके पास में किस तरीके से वर्क करती हैं, राइट। सो द स्टेज इन सॉफ्टवेयर सिस्टम लाइफ साइकिल वेयर इट इज इन ऑपरेशनल यूज एंड इन्वॉल्विंग अ न्यू रिक्वायरमेंट आर प्रपोज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स पीएसआईटी हॉस्टल्स में रहे होंगे, आप
न्यू स्टूडेंट्स हो, बट जो पुराने अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो आप में से बहुत सारे लोग गेट पास यानी जो हॉस्टल्स में रहते हैं वो बाहर जाते थे, राइट। तो पहले मैनुअल सिस्टम था, गेट पास बनवाना पड़ता था, राइट। क्लियर। नाउ अडेज आप क्या करते हो, थंब इम्प्रेशन यूज करते हो, राइट, और आपकी एंट्रीज इन और आउट की हो जाती है, राइट। पहले आपके पास में ये प्रोसेस नहीं था। क्लियर। अब आपके पास में क्या है, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से पहले क्या होता था, गेट पास में किसी के साइन होने या कुछ भी होना है तो चीजें फुल प्रूफ सिक्योर्ड नहीं थी। नाउ द थिंग्स आर सिक्योर्ड, यानी अगर आप गए हो तो आपका ही बायोमेट्रिक्स लगा होगा, कोई दूसरा आपका बायोमेट्रिक्स नहीं लगा सकता है। इट मीन्स एक्चुअल में आप गए हो या नहीं गए हो इसका आपके पास में क्रॉस कंफर्मेशन है। पहले क्या था, हमें करना पड़ता था आपके पास में कि आप एक्चुअल में हॉस्टल में हो या नहीं हो, आपके बिहाफ पे कोई दूसरा तो नहीं कुछ मिसहैपनिंग कर रहा है। सो ये क्रॉस कंफर्मेशन आपके पास में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, रिक्वायरमेंट चेंज हुई, हमने अपने इवेल्युएशंस को चेंज किया, नई रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में आई, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था, राइट, उसी में हमने इस पार्ट को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, राइट। सो हमने अपने नए कोई सिस्टम में चेंज नहीं किया, हमने इस चेंज को इनकॉर्पोरेट किया जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग सिस्टम था। सो एक नया इवेल्युएशन हमने उसमें एड ऑन कर दिया, राइट। क्लियर। सेम सेकंड चीज आपके पास में हमें अपनी ट्रैकिंग सिस्टम देखना था कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बस हमारे पास में कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही है, हम सुबह 7 o'clock आते हैं आपके पास में, मालूम चला बस 8 o'clock आ रही है, राइट। नाउ द ट्रैकिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल। सो बस में एक नया ट्रैकिंग सिस्टम एड ऑन कर दिया गया, अब वो हमारे मोबाइल के साथ में हमने कनेक्ट कर लिया और हमें बस की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल रही है, हम उतने बजे अपने स्टॉप पे जाके पहुंच जा रहे हैं, राइट। दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, राइट। सो जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो एज इट इज चल रहा है, हमने उसमें एक नया इनहेंस कर दिया, राइट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने अपने पुराने सिस्टम में कुछ चेंजेस किया, बस वैसे ही उसी रूट्स पे चल रही है, हमने उसमें एक नई फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर दी। दैट इज आवर इवैल्यूएशन, राइट। इज दैट क्लियर? नाउ सर्विसिंग का पार्ट क्या है, एट दिस स्टेज द सॉफ्टवेयर इज remains useful but the only change made and those requirement to keep it operational, bugs fixed and changed to reflect change in the software environment, no new functionality is added, right। suppose हमने जब कोई भी नई चीज ऐड ऑन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास 100% एक्यूरेटली वर्क करे, राइट। कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं, हमने सबसे पहले सपोज बाहर आपके पास इन आउट प्रोसेस ऐड ऑन कराया, तो हमारे पास में उसमें कुछ लूप होल्स थे, इन आउट प्रोसेस ऐड कराने पे हमारे पास में आईडी प्रॉपर्ली बाउंड नहीं हुई थी, राइट। हमने हॉस्टल की आईडी अलग बना रखी थी और आपकी कॉलेज की आईडी अलग थी, राइट, दोनों की रजिस्ट्रेशन आईडी अलग अलग थी। सो अब जब हम उसे बाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास में दोनों आईडीज गलत तरीके से चल रही थी। फिर हमने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया कि जो आपकी कॉलेज की आईडी है यानी वही हमारे पास में हॉस्टल की भी आईडी रहेंगे, अब हम उन्हें चेंज नहीं करेंगे, राइट। सो आपके पास में ये प्रोसेस आपके पास में सॉल्व हो गया, राइट। सो जब भी हम कोई भी चीज एड ऑन करते हैं, इवेल्युएशंस नए ऐड करते हैं, सो वो 100% आपके पास में फुल प्रूफ नहीं होते हैं, दे आर एरर प्रोन, राइट। सो उन सर्विसिंग का मतलब है कि हम उन्हें यूज करते हैं, जो भी बग्स होते हैं, एरर्स होते हैं, उनको हम फिक्स करते हैं, कोई नई फंक्शनैलिटी उस टाइम पे हम एड ऑन नहीं करते हैं, राइट। एंड जब वो एनवायरनमेंट हमारे पास में 100% एक्यूरेट हो जाता है तो हमारे पास में उस फंक्शनैलिटी को हम यूज करना स्टार्ट कर, मतलब वो हमारे पास में यूज करता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं, बट हम उस फंक्शनैलिटी को फिर फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन कर लेते हैं, मतलब वो हमारे पास में अब कंप्लीट हो गए, फिर हम नई फंक्शनैलिटी पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट फेज है फेज आउट, द सॉफ्टवेयर विल स्टिल यूज बट नो फ्यूचर चेंजेस मेड इट टू आउट, राइट। यानी अब हमारे पास में वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है तो हमने उसे फेज आउट कर दिया, यानी अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम का पार्ट हो गया है, खत्म हो गया काम। अब हमें कुछ नया और काम करना होगा तो वो फिर से नया इवेल्युएशन होगा, वो फिर से सर्विसिंग पार्ट में आएगा, वो फिर से फेज आउट होगा, राइट। क्लियर। चेंज आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन प्रोसेस क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे बोलें, आप में से मैक्सिमम लोगों ने, सारे लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, राइट। कुछ ने आपके पास में सिंपल बीएससी की हुई है, कुछ लोगों ने आपके पास में बीसीए किया हुआ है, राइट। कुछ लोगों ने बीएससी कंप्यूटर साइंस की होगी, राइट। सबने अलग अलग पार्ट में ग्रेजुएशन की हुई है। सो और इसके बाद आपने एमसीए प्रोसेस चूज किया, जब आप ग्रेजुएशन में थे या ग्रेजुएशन जब आपने चूज किया था तो बहुत सारे लोगों का प्रोसेस ये नहीं होगा कि उन्होंने एमसीए चूज करना है, राइट। राइट, बहुत सारे लोगों का प्रोसेस नहीं होगा कि उन्हें एमसीए करना है, इट्स समथिंग एल्स इन अ माइंड, बट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपका जो प्रोसेस था, इवेल्युएशन प्रोसेस था, वो चेंज हुआ,
आफ्टर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, एट द थर्ड ईयर आपके पास में अलग अलग स्ट्रीम्स के लोगों का जो इवेल्युएशन प्रोसेस था वो एट द लास्ट आपके पास में एमसीए के साइड में डाइवर्ट हो गया। बहुत सारे आपके जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने बीसीए किया था, दे नॉट शिफ्टेड इनटू एमसीए, दे गॉन ऑन द सम अदर फील्ड्स, राइट। जो बीएससी वाले थे उनमें से कुछ आपके पास में एमसीए में आए एंड रिमेनिंग आर गो टू एमएससी और सम अदर फील्ड्स, राइट। सो इट मींस सबका इवेल्युएशन प्रोसेस अलग अलग तरीके से है। इवेल्युएशन प्रोसेस है किस तरीके से प्रोसेस होता है? सपोज आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका आउट यानी गोल क्या है, आउटपुट्स क्या है, राइट। उसके बेसिस पे आपकी करंट कंडीशंस क्या है, उसके बेसिस पे आप अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करते हो, राइट। सो सिंपल सा चीज है, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये तो रियल लाइफ सिनेरियो हुआ कि हम करेंटली किस सिचुएशन पे हैं और हमारे पास में आगे हमें क्या अचीव करना है, उसके बेसिस पे हम चीजों को इवेलुएट करना स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इनपुट्स एंड व्हाट इज द आउटपुट दैट इज प्रेडिक्ट बाय इन योर प्रोसेस, राइट। क्लियर। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सिस्टम को इवेलुएट कर रहे हैं, राइट। सो सॉफ्टवेयर इवेलुएशन प्रोसेस है हमारे पास में, राइट, दैट इज अ पार्ट सॉफ्टवेयर इवेलुएशन। क्लियर। अब हमने इस प्रोसेस को इवेलुएट किया है कि हमारे पास में जो सिस्टम था, राइट, हमने उसको इवेलुएट किया। इवेलुएट करने के बाद हमने बोला कि हमें एक न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, राइट। न्यू सिस्टम में हमारे पास में हमने बोला कि ये चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हमने चेंज आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन कौन से चेंजेस की आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास में, राइट। जब चेंज आइडेंटिफिकेशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमने उन चेंजेस को प्रपोज कर लिया और वो जब चेंज हमारे पास में प्रपोज हो गए तो हमने उन चेंज प्रपोज को उस पर्टिकुलर सिस्टम पे अप्लाई कर दिया और जब वो अप्लाई हो गए तो हमारे पास में वो नया सिस्टम बन गया, राइट। इट मीन्स ये साइकिल प्रोसेस है। जैसे आपने ग्रेजुएशन के एंड में सोचा कि हमें एमसीए करना है, राइट। आपने एंट्रेंस दिया, आप सक्सेस हो गए, आपने या एंट्रेंस नहीं दिया, आपने डायरेक्ट एंट्री ली, राइट। आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने एमसीए में एडमिशन ले लिया, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट साइकिल। आपने एक प्रोसेस कंप्लीट किया है, राइट। जो आपने चेंज सोचा था वो आपने चेंज कंप्लीट कर लिया, राइट। उस चेंज का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे लोगों को जॉब मिली और बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिली, इट मे और मे नॉट बी, राइट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमसीए अब कुछ लोगों के फिर से इवेल्युएशन प्रोसेस चेंज हो गए, जिनको जॉब मिल गई दे आर सेटिस्फाइड, बट जिनको जॉब नहीं मिली वो फिर से एक नया सिस्टम इवेल्युएट करने लगे कि आफ्टर अब हमें क्या करना है, राइट। सो एक नया सिस्टम फिर से डेवलप हुआ। जिनका आपके पास में गोल अचीव हो गया वो आपके पास में न्यू सिस्टम के प्रोसेस पे नहीं गए, वो यहीं पे स्टॉप हो गए, वो अपने नए वो उस पर्टिकुलर सिस्टम के सैचुरेशन पॉइंट पे हो गए। अब उनका प्रोसेस दूसरी तरीके से डिफाइन हो गया, वो कैरियर ओरिएंटेड हो गए, यानी अब उन्हें अपने कैरियर में क्या इन्हेंसमेंट करना है। और जो जिनका कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ है वो अभी कैरियर बिल्डिंग के लिए नए प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। सो दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके पास में इवेल्युएशन पर्पस पे स्टार्ट हो गए। सो प्रपोजल फॉर चेंज आर द ड्राइवर फॉर सिस्टम इवेल्युएशन, राइट। क्लियर। and the second part is should be linked with the component that are affected by the changes, thus allowing the cost and impact of changes to the estimated, right। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमें कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, सो हम चाहते हैं कि हम ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें, राइट। रिक्वायरमेंट है, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन हमने अपने आप को एनालाइज किया और हमने फिर उस चीज को विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन। फर्स्ट एस्पेक्ट, फाइनेंशियल ओके है बट ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस कंडीशन, क्योंकि जो टाइम कंस्टेंट है उस टाइम कंस्टेंट्स में हम उन पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स को ऑप्ट नहीं कर पा रहे। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स जिनके बेसिस पे आप उन चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हो और ऑप्ट नहीं कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन टेक्निक्स में आपके पास में टाइम भी आता है, कॉस्ट भी आता है और दोनों फैक्टर्स एक साथ भी रिलेट करते हैं, राइट। सो चेंज आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन कंटिन्यूअस थ्रू आउट द सिस्टम। सो जो चेंज होता है वो आपके पास में कंटिन्यूअसली सिस्टम्स में वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सोचा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेते हैं, राइट, और एडमिशन लेने के विद इन 1 and 2 months आपके पास में आप विदड्रॉ कर लेते हो, राइट। एन नंबर ऑफ रीजंस, राइट। आपको पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये चीज़ें हमारे लिए कैपेबल नहीं है या हम इनके लिए कैपेबल नहीं है, या जो हमारा गोल था या जो हमारा थॉट प्रोसेस था उससे स्टडी मैच नहीं कर रही है, यू इमीडिएटली विदड्रॉ दैट पॉइंट, राइट। फिर कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी चीज़ों को रिफाइन करते हो, फिर आप सर्टेन कुछ लोग होते हैं 6 मंथ बाद विदड्रॉ करते हैं। सो एन नंबर ऑफ प्रोसेस, राइट। सो इट मीन्स आपके पास में जो चेंजेस हैं
चेंज आइडेंटिफिकेशन से वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। इवेल्युएशन प्रोसेस आपके पास में कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप किसी भी चीज को चेंज करोगे, आप उसे इवेल्युएट जरूर करोगे। दैट इज अ होल सोल सिनेरियो इन द रियल लाइफ। आप अगर कुछ भी करते हो तो आप उसे इवेल्युएट करते हो। थिंक इन अ सर्टेन एग्जाम्पल, कोई भी लाइफ का एक एग्जाम्पल लो। आपने अगर कुछ भी चेंज किया होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना पेन उठाते हो और एक प्लेस से दूसरे प्लेस रखते हो, तब भी आपके दिमाग में आता है कि क्या हमने ये चीज सही जगह रखी है या नहीं रखी है। इट मीन्स इवेल्युएशंस हमेशा चेंज के साथ में इन्वॉल्व होता है। सो इवेल्युएशन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज, और इट्स अ वाइस वर्सा, चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेल्युएशंस। अगर आपने कुछ भी चेंज किया है तो इवेल्युएट होगा, और अगर आप इवेल्युएशंस की बात कर रहे हो तो इट मीन्स वहां पे चेंजेस हुए हैं, राइट। हम आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। सो हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं तो किस चीज पे इवेल्युएट करते हैं? आप कांस्टेंट हो, राइट। सो कांस्टेंट हो तो ये चीज हमें कैसे मालूम चली? आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के बाद तो मालूम चली। आपने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, ये चीज हमें कैसे मालूम चली? आपकी परफॉर्मेंस कुछ पैरामीटर्स थे, हमने आपको रेट किया, और आफ्टर दैट हमें ये मालूम चला कि आपकी परफॉर्मेंस अप्स हुई है या डाउन हुई है। सो इट मीन्स चेंज एंड इवेल्युएशन दैट आर द कोरिलेटेड, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन प्रोसेस। अब होल सोल जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, उन्हीं चीज़ों को एक सिस्टमेटिक पैटर्न में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज चेंज रिक्वेस्ट, राइट। आपने किसी से कुछ चीज, बहुत कॉमन एग्जांपल है रियल लाइफ का। आपके पेरेंट्स छोटे से होते हैं, ये हैबिट चेंज करो, सुबह जल्दी उठो, राइट, इसके ये बेनिफिट्स होंगे, समथिंग ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें होती हैं रियल लाइफ में, राइट। सो चेंज रिक्वेस्ट, राइट, क्लियर। आपके कॉलेज में टाइम पे आओ, नहीं तो फाइन लगेगा। चेंज रिक्वेस्ट 9 o'clock आना है, 90% अटेंडेंस, दीज आर द चेंज रिक्वेस्ट, राइट। सो आप अगर लेट आ रहे हो तो आपको क्या किया जाता है? चेंज करने के लिए बोला जाता है, राइट। सो चेंज रिक्वेस्ट अप्लाई हुए, राइट। सो जब आपने चेंज रिक्वेस्ट किया तो इम्पैक्ट एनालिसिस, आपके पास में कितना इम्पैक्ट हुआ उस चेंज का, राइट। रिलीज प्लानिंग, राइट, उस इम्पैक्ट एनालिसिस को हमने रिलीज किया, चेक किया आपके पास में क्या उसका आपके पास में प्रोसेस हो रहा है, राइट। रिलीज करने के बाद में हमने देखा कि चेंज इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से हमने उसको रिलीजिंग प्लानिंग पे अप्लाई किया। यानी हम इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद में, जैसे हमने आपसे बोला कि आपको 9 o'clock पे आना है, हमने आपको एक बार वार्न किया, 2 बार वार्न किया, 3 बार वार्न किया, 3 बार वार्न करने के बाद भी आप नहीं आते हो तो आपको लॉक कर दिया, राइट, क्लियर। सो दीज आर द रिलीज प्लानिंग्स, राइट। सो कंटिन्यूअसली आपके पास में क्या हो रहा है? हम उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली अपडेट कर रहे हैं, राइट। सो चेंज इम्प्लीमेंटेशन करने का एक प्रोसेस होता है, दिस इज अ प्रोसेस, राइट। ओके, अब रिलीज प्लानिंग के अंदर भी कई सारे पार्ट्स हैं। दीज आर द फॉल्ट रिपेयर, राइट, प्लेटफॉर्म एडॉप्शंस एंड सिस्टम एनहांसमेंट, राइट। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के टर्म में, राइट। ये तो हो गया आपके पास में एक जनरल लाइफ सिनेरियोस के पार्ट की बात हो रही है। नाउ अब जो ये 3 पार्ट्स हैं, ये आपके पास में होते हैं रियल लाइफ में। अगर हम इसको चेक करें तो सपोज आपसे बोला जाता है आप एडामेंट हो, नहीं करेंगे, जाओ जो करना है कर लो, राइट। फॉल्ट है, हम नहीं करेंगे, हम एडॉप्शन पे नहीं आएंगे, जो करना है कर लो, ठीक है, मार्क करना है कर दो, कॉलेज से नाम हटाना है हटा दो, घर पे रखना है रखो, हम एडामेंट है, हम चीज़ों के करस्पॉन्डिंगली चेंज नहीं होंगे, राइट। सो दैट इज अ वन पार्ट। नाउ अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर में चेंज की रिक्वायरमेंट की, राइट, हमें एक स्पेसिफिक तरीके की रिपोर्ट जनरेट करनी थी, दैट इज माइनर चेंजेस, राइट। जब हमने इस चेंजेस की रिक्वायरमेंट की तो हमने उसका एनालिसिस किया कि क्या ये चेंजेस पॉसिबल है, यानी ये रिपोर्ट जनरेट हो सकती है, इसमें कुछ मेजर चेंजेस करने हैं या माइनर चेंजेस करने हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हमने एनालाइज करी। एनालाइज करने के बाद हमने उसकी प्लानिंग को भेज दिया, राइट। प्लानिंग को भेजने के बाद में हमने उसमें चेंजेस इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किए। इम्प्लीमेंटेशन को हमने कंटिन्यूसली प्लानिंग के साथ में रिलीज करना स्टार्ट किया, राइट। और इसके बाद हमने देखा कि उसमें हमारे पास में कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, राइट। कुछ हमारे पास में प्लेटफॉर्म में भी चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें कोई नया प्लेटफॉर्म ऐड करना है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, राइट। नॉर्मल जो हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उस पर रिपोर्ट्स नहीं जनरेट हो पाएगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स है, राइट। और कुछ हमें सिस्टम इनहेंसमेंट करना पड़ेगा, इट मीन्स हमें प्रिंटर चाहिए होगा या प्लॉटर चाहिए होगा, बड़ी रिपोर्ट्स हैं। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम उस रिलीजिंग की प्लानिंग में यूज करते हैं। तो फॉल्ट रिपेयर, प्लेटफॉर्म एडप्शंस एंड सिस्टम एनहांसमेंट। तो सपोज हमें एक बड़ी सी रिपोर्ट निकालनी है, दैट रिपोर्ट इज MIS रिपोर्ट,
बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं जिसको हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स बोलते हैं। प्लानिंग के लिए रिपोर्ट्स होती है, प्लॉटर्स पे निकलती है, मतलब आपके पास में बड़ी सी रिपोर्ट है जिसमें 50-60 कॉलम्स हैं, तो आपके पास में बड़ा सा एक कागज लगेगा, उस पर निकलेगी, नॉर्मल प्रिंटर्स पे नहीं निकलती है, राइट। सो उस तरीके की कोई रिपोर्ट्स का हमारे पास में चेंज आया तो हमारे पास में फॉल्ट रिपेयर, यानी हमें उसके लिए कुछ डेटा चाहिए था जो हमारे पास में डायरेक्टली फ्लो नहीं हो रहा था, उन डेटा को हमने गैदर किया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। प्लेटफॉर्म एडेप्शंस, यानी हमारे पास में इस तरीके की रिपोर्ट्स हम नॉर्मल नोटपैड पे नहीं निकाल सकते हैं, वी यूज अ क्रिस्टल रिपोर्ट्स फॉर द रिपोर्टिंग टूल्स, राइट, दैट इज अ प्लेटफॉर्म एडेप्शंस, राइट। एंड थर्ड वन, सिस्टम एनहांसमेंट, सपोज वी वांट सम हार्डवेयर enhancement, that is a plotter, normal printer पे हम उन रिपोर्ट्स को नहीं निकाल सकते हैं, राइट। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स, राइट। सो ये चीजें हमारे पास में चेंज इम्प्लीमेंटेशन में आई। आफ्टर दैट सिस्टम रिलीज, ओके। सो सब ये सारी चीजें जब इम्प्लीमेंट हो गई तो हमने उस सिस्टम्स को रिलीज कर दिया, यानी उन चीजों को ऑप्ट कर लिया, तो हमारे पास में चेंज रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई। सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ सॉफ्टवेयर इवेल्युएशन प्रोसेस, राइट। चेंज इम्प्लीमेंटेशन, ओके। सो प्रपोज चेंज आपने किया, रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुई, ओके। प्रपोज चेंजेस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। जब तक आपके पास में ये चॉइस कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब ये पार्ट पे हम सेटिस्फाई हो गए तो हमने रिक्वायरमेंट को अपग्रेड कर दिया और सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, राइट, क्लियर। सो हमारे पास में ये चेंज इम्प्लीमेंटेशन हो गया, यानी हमारे पास में रिक्वायरमेंट एनालिसिस और प्रपोज चेंजेस आपके पास में साइक्लिक प्रोसेस है, जब तक कि हम सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। सपोज हमने आपसे बोला, आप जाते हो किसी भी शॉप पे परचेज करने के लिए, परचेजिंग के लिए, आप बोलते हो सच एंड सच प्रोडक्ट दिखाओ, तो आपको 10 चीजें दिखाता है, और फिर आप 10 चीजों में से 2 चीजें चूज करते हो, फिर उन चीजों में भी आप बोलते हो कुछ और वैरायटी दिखाओ, कुछ और, एट द लास्ट आप जाके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे सेटिस्फाई होते हो, और फिर उस पर्टिकुलर पार्ट पे जब आप सेटिस्फाई होते हो तो फिर आप बार्गेनिंग स्टार्ट करते हो, क्या कुछ इस पे कंसेशन डिस्काउंट हो सकता है। एट द लास्ट जब सारी चीजें मीट आउट होती है तो आप क्या कहते हो, ठीक है अब इसको फाइनल कर दो, जो भी इसकी बिल्डिंग है। सो सेम चीज यहाँ पे भी है, आपके पास में कोई नई चेंजेस आए तो आप उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हो, राइट, प्रपोज करते हो उनको, उन चीजों को एड ऑन करते हो, राइट। तो ये प्रोसेस आपके पास में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जब आप इस पर सेटिस्फाई हो जाते हो, देन आपके पास में आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट अपग्रेड करते हो, और फिर आपके पास में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट। तो चेंज इम्प्लीमेंटेशन आपके पास में क्या है, बेसिकली चेंज इम्प्लीमेंटेशन का बेसिकली पार्ट है आपके पास में कि interaction of the developments, right, process where the revision of the systems are designed, implementation and tested, right, that is the first part. The critical difference is that the first stage of change implementation may involve program understanding, especially if the original system developers are not responsible for the change implementation, right। तो जिन्होंने पहले डेवलप किया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चेंज इज अ डिफरेंट पार्ट, जिन्होंने पहले डेवलप किया वो डेवलप करके चले गए, अब कोई नया डेवलपर आया तो कोई नए चेंजेस हैं तो वो आगे उसे कैरी ऑन करेगा। ड्यूरिंग द प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग फेज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड, हाउ इट डिलीवर्स फंक्शनैलिटी एंड हाउ टू प्रपोज चेंज माइट बी अफेक्टेड ऑन द प्रोग्राम। किसी के प्रोग्राम को समझना और उसमें चेंजेस करना, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग। आपने किसी के प्रोग्राम को पहले समझा, प्रॉपरली उसके स्ट्रक्चर को क्लियर कर किया, और फिर आप उसमें चेंजेस स्टार्ट करोगे, राइट। Urgent changes may have the implemented without going through the all stages of software engineering process if the serious system fault has to be repaired, right, to allow normal operation to continue. If change to the system environment have unexpected effect, if there are business change that requirement are very rapid response, right। अर्जेंट चेंज रिक्वायरमेंट कब है, जब आपके पास में इस तरीके की कोई सीरियस चीजें होती हैं तब हम क्या करते हैं, अर्जेंट चेंज रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज हमारे पास में क्या होते हैं, सिस्टमेटिक चेंज रिक्वायरमेंट होती है, राइट, ओके। तो इमरजेंसी रिपेयर्स आपके पास में प्रोसेस क्या होता है, चेंज रिक्वेस्ट होती है, एनालाइज सोर्स कोड होता है, मॉडिफाई सोर्स कोड होता है, और फिर आपके पास में डिलीवर्ड मॉडिफाई सिस्टम्स होते हैं, राइट। ये आपके पास में लेमन लॉज है, आपके पास में कंटिन्यूस चेंजिंग, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, ये आपके पास में पूछा नहीं जाता है, नॉर्मल आपके पास में डिस्कस कर दिया है, राइट। लास्ट है आपके पास में की पॉइंट्स क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशंस कैन बी throughout of a integrated interactive process, right, for customer systems the cost of software maintenance usually expected and the software development cost। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस प्लान, राइट। क्यों दिया जाता है एनुअल मेंटेनेंस प्लान, हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी
एनुअल मेंटेनेंस प्लान देती है। आप में से मैक्सिमम लोग बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, राइट। जैसे आपके पास में अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई आपके पास में क्या है, फिनिकल यूज करती है, इन्फी का प्रोडक्ट है। ओके, अब इन्फी का प्रोडक्ट है तो आपके पास में रिक्वायरमेंट चेंजेस होंगी, तो क्या आपके पास में एसबीआई उन चेंजेस को अपने बेसिस पे कर सकता है? नहीं। तो वो क्या करता है, आपके पास में एनुअल मेंटेनेंस दे देता है। किसको? इन्फी को, राइट। इन्फी अब आपके पास में रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई भी चेंजेस होगा वो उसके लिए कॉस्ट लेती है और उसको बियर करती है, राइट। जो भी चेंजेस होंगे, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे वो नॉन फंक्शनल हो, राइट, वो उनको बियर करेगी, राइट, उसमें चेंजेस करेगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉस्ट है, राइट, वो एएमसी के लिए चार्ज करेगी, राइट। तो आप कभी भी देखो, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है बैंक में, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो डायरेक्टली चेंज नहीं करते हैं, राइट। वो अपने कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, यानी बैंक का आपके पास में इंटरनली कस्टमर केयर होता है, राइट। वो उन पे वर्क करते हैं, उन पे कॉल करते हैं और वहां से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराते हैं। आप जो कस्टमर केयर कॉल करते हो वो डिफरेंट है, बैंक के इंटरनल कस्टमर केयर डिफरेंट है, राइट। तो ये उन्हीं चीज़ों का प्रोसेस है। ओके, इसके बाद लेमन्स लॉ होते हैं जो आपके पास में, सच एज notation that change in continuous desirable a number of insight deliver for long term study and system evaluations। अब इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूस चेंजेस का मतलब क्या है? अ प्रोग्राम दैट यूज इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट मस्ट necessarily change or else become progressively less useful is that environment। Increasing complexity as an involving program change in structure tends to become more complex. Extra resources must be devoted to precise and simplifying the structure, right। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब बेसिकली क्या है? जब भी हम लॉस जिसकी बात कर रहे हैं, लेमन लॉस की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली चेंज आपके पास में ह्यूमन नेचर है या आपके पास में सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। जब हम किसी भी चीज को चेंज करेंगे तो आपके पास में क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास में, बट ऑब्वियसली बात है, इंक्रीज होगी, राइट, क्योंकि हम चेंज करने जा रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कि जो हमारे पास में हम चेंजेस कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे पास में कहीं कोई ऐसी चीज हैपनिंग ना हो जिससे हमारे पास में जो ओवरऑल प्रोसेस है वो कहीं इफेक्टिव हो, राइट। सो ओवरऑल जो प्रोग्राम लाइफ टाइम चल रहा है, राइट, वो आपके पास में उसी फ्रिक्वेंसीज पे वर्क करता रहे, राइट। सो ओवरऑल प्रोग्राम लाइफ टाइम इज अ रेट ऑफ डेवलपमेंट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिवोटेड ऑन सिस्टम डेवलपमेंट। इट मीन्स आपके पास में जो भी चेंजेस हैं, राइट, उनकी वजह से जो भी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से आपके पास में जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। मीनिंग क्लियर है? सो ये आपके पास में एक लॉ प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी भी चीज को इवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे चेंज करते हैं तो हमारे पास में स्टेबिलिटी फैक्टर्स कहीं पे भी इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टॉपिक, राइट। व्हाट इज द इवेल्युएशन प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर? सो ओवरऑल इवेल्युएशन प्रोसेस जो हम लोगों ने समझा वो कई पार्ट पे है, यानी आपके पास में चेंजेस क्या होते हैं, नॉर्मल, राइट। फिर इसके बाद इवेल्युएशन क्यों करते हैं, किस किस पार्ट पे हो सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस पे हो सकते हैं, ऑपरेशनल पार्ट पे हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे हो सकते हैं, राइट। अगर हम इवेल्युएशन पार्ट पे करते हैं तो किस तरीके से वर्क होता है, चेंजेस पार्ट पे करते हैं तो किस तरीके से वर्क होता है, इवेल्युएशन प्रोसेस आपके पास में क्या होता है, राइट। डेफिनेटली बेटा पीपीटी में शेयर करूंगा आपको। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में ये चेंज इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होते हैं आपके पास में, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास में ये प्रोसेस आपके पास में किस तरीके से वर्क करता है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास में अगर अर्जेंट रिक्वेस्ट होती है तो हमारे पास में सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, राइट। और अगर इमरजेंसी रिपेयर प्रोसेस क्या होता है आपके पास में, तो इमरजेंसी में हम लोग क्या, अगर हम नॉर्मल सेंस में अगर आप बोलो मेडिकल इमरजेंसी में क्या होता है, अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप तुरंत जाते हो, राइट। पहले आपको इनिशियली ट्रीटमेंट मिलता है और इनिशियली आपकी चीज़ें डायग्नोस होती हैं, डायग्नोस होने के बाद में आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इमरजेंसी रिपेयर में आपके पास में ये प्रोसेस, आपके पास में पहले आपके पास में चेंज को एनालाइज किया जाता है, जो भी आपके पास में कोड होता है उसको आप एनालाइज करते हो और उसके बेसिस पे ही आप उसके करेक्टिव एक्शंस को डिफाइन करते हो, राइट। और यही चीज आपके पास में
लेमेंस लॉ कहलाते हैं कि हम कंटिन्यूअसली चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस की स्टेबिलिटी फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं, राइट। जिससे हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी फैक्टर्स आपके पास में कहीं पे भी इफेक्ट ना करें, राइट। क्लियर? सर ये कम आया, ये बता दीजिए। ओके बेटा, देखो जब भी हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो सिंपल सी बात है, आप रियल लाइफ एग्जांपल लो। आप अपनी लाइफ में कोई भी अगर अपना कंफर्ट जोन से चीज़ों को चेंज करते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे बोलें कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपकी लेट उठने की आदत है, तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी, राइट। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होंगी। सो आप उन कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे बियर करोगे, राइट। और उस बियरिंग की वजह से आपके पास में पूरी जो सुबह के बाद उठने के बाद का प्रोसेस है वो इफेक्ट भी ना हो। यानी आपके सुबह उठने की वजह से आपका आगे का 24 जो घंटे हैं, 24 आवर्स हैं, वो पूरा का पूरा सफर ना करें। सो इस चीज को भी आपको मैनेज करना है। सो यही लेमन प्रिंसिपल होता है कि आपने जो चेंज किया, उस चेंज की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑकर हुई है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैसे डाइल्यूट करोगे, राइट। यानी आप सुबह 5 बजे तो उठ गए, लेकिन उस 5 बजे के उठने की वजह से आपकी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। अगर वो डिस्टर्ब हो रही है तो उस 5 बजे के उठने को आप कैसे मैनेज करोगे, दैट इज कॉल्ड द इवेल्युएशन प्रोसेस। कि आप उस और ये पर्टिकुलर, स्टेबिलिटी। हाँ, उसी चीज को स्टेबिलिटी बोलते हैं। कि आपने सुबह 5 बजे उठे और अब आप पूरे दिन सो रहे हो, राइट। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। कि आपने सुबह जल्दी तो उठ गए, बट सुबह जल्दी उठने का मीनिंग ये नहीं था ना। सो इस चेंज को आप कैसे कॉर्पोरेट करोगे, दैट इज अ पार्ट, राइट। ओके, ठीक है। अटेंडेंस आपकी हो गई है बेटा, मेरे पास स्नैपशॉट्स हैं, सो थैंक यू। ओके, पीपीटी मैं आपको शेयर करा दूंगा। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बच्चे।